इतना सा है इस खेल का सफर, पा लेने की बेचैनी, खो देने का डर। जी हाँ, हार के डर से बड़ी चाहिए आज जीत की अभिलाषा, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला बड़ौदा और बंगाल के बीच यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। लीग स्टेज अच्छा रहा था, तभी प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और फिर चंडीगढ़ को एक अच्छा मुकाबला खेला गया था। चंडीगढ़ और बेंगलुरु के भी इसी मैदान पे बंगाल के बीच, और वो मुकाबला 3 रनों से जीत के पहुंची है यहाँ क्वार्टर फाइनल तक। क्यों इतनी बढ़िया टीम मानी जाती है, खास तौर पे जब आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें। ये वही टीम है जी हाँ, जो पिछले साल फाइनल तक पहुंची थी इस टूर्नामेंट के, और पंजाब से वो फाइनल मुकाबला मोहाली में ये टीम हार गई थी। लेकिन आज और इस साल एक अलग मंसूबे नजर आ रहे हैं इस टीम के। चिन्नास्वामी स्टेडियम तैयार है एक और शानदार मुकाबले के लिए, और हम टॉस के लिए। मेरे साथ हैं बड़ौदा के कप्तान कुणाल पांड्या, बंगाल को लीड कर रहे हैं सुदीप कुमार ग्रामी और पंकज धर्मानी, मैच रेफरी। कुणाल, हेड है कॉल, हेड ही है। सुदीप, आप टॉस जीते हैं, क्या करना पसंद करेंगे? मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ इस विकेट। Shashwat Rawat has been given a chance. He's been a phenomenal in the 4-day game, but in one-day game, he's got a 15. Abmanyu Singh Rajput, 15 innings, 259, good strike rate. जी हाँ, पहली गेंद ऑल बिल्कुल सटीक टप्पा। ये है मोहम्मद शमी आपके लिए, कोई लूजनेस नहीं। अच्छा शॉट खेला है। ये ग्राउंड में वैसे भी गेंद अच्छी रफ्तार पकड़ लेती है और गैप मिला है ये बिल्कुल। खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई। बहरहाल इस मैच का पहला बड़ा हिट। Nicely played, beautifully played. Another boundary. Opening slot, that'll be 4. Again, there you've paid the price. That's gone for 4. Oh, that's a great shot. That is a great shot. That's gone for 6. अच्छा पिक किया ये, जी हाँ। Oh, wonderful hit by the bats. इस समय सोच रहा होगा गेंदबाजी में समस्या है, एक और बाउंड्री आती हुई। Oh, this up in the air, and wicket number 1, who's living dangerously, Abmanyu Singh. अभिमन्यु सिंह राजपूत के तौर पर 37 उन्होंने बनाए। Oh, look at that, and that is what I've been saying all along, that is the unwritten rule. शाश्वत रावत बढ़िया बल्लेबाजी की, 40 बनाए उन्होंने। Up in the air, and a first boundary from Kunal Pandya. They can change the gear anytime. Up in the air, there is an opportunity. That pressure, you know. कुणाल पांड्या ने बनाया 7 रन, 103 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा। Lovely shot. We were talking about this spell. That's the worry. और लेकिन चांस लेने की कोशिश की, इस बार कट किया सीधा हाथ में। Hardik back in the hut after making 10. This is 6 though. This was a little bit of a freebie. Top shot. This is even better than the earlier 6. हाँ, इनके लिए दूर जाएंगी और इन्होंने उसको और दूर भेज दिया है। Oh, fabulous. Another 6. Oh, he's gone. Just as we were building Panya up. भानु पानिया, छोटी पारी लेकिन किफायती पारी। Oh, that's a good shot. Excellent shot first up. Edged and another boundary. Another wicket falls. 159 पे 6 बड़ौदा। Could this be another dismissal? Yes. Very well judged. OUT. Oh, we were talking about edges, but this is fabulous. There's the edge that we were talking about.
4 of the last ball. 172 at what Baroda got in their 20 overs. And Bengal, thinking that 90 for no loss, will be happy with that. So it's one of those games which is very evenly poised. 20 ओवर के बाद 172 तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। Down to the batting card, Shashwat at the top of the order, getting 40 top scoring, coming off just 26 deliveries. A really good opening partnership. Abhimanyu Singh 37. Pandya brothers did not get too many runs in this outing, but then Shivalik 24 of 17, Panya 17 of 11, good strike rate there. Solanki played an outstanding innings, 16 of 7, and Pitya 6 of 3. That enabled them to get to 172. बंगाल को किस तरह का स्टार्ट मिलता है इस रन चेज में, और उसकी शुरुआत बस कुछ ही लम्हे दूर है। Karan Lal, 21 innings, 148 is the strike rate. Look at his strike rate, 152 strike rate, and 750s to his name. He's been phenomenal. T20 क्रिकेट में सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो है उसमें इनकी गिनती होती है। Hardik Pandya comes in. Beautifully swung the ball back in. It'll be a test of Hardik Pandya too, and a test of Abhishek Porel also. थोड़ी सी विड्थ, हल्की सी। Oh, look at that. This is what I'm saying. Give him width, then he'll go after you. गैप अच्छा मिल गया वहां पे। That's up in the air. That is up in the air. Another. They all count. बाउल्ड इन, पहली विकेट बड़ौदा के लिए। यहाँ पे करण लाल जो है चकमा खा गए। Karan Lal out for 6, 29 for 1. Oh, beautifully bowled, and yes, this is what Lukan Meriwala is all about. Wicket to wicket bowling. और घरामी 2 ही रन बना के आउट हुए। ये लीजिए, बताइए ये किस तरह का शॉट खेला है आपने, ये क्या किया है ऋत्विक कि जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 31 पे 3। A lot more risk. Here he goes. He takes the risk. Another wicket goes. 22 रन बनाए अभिषेक पोरल ने। Oh, could have been another one. 4 आउट हो गए हैं और रन्स बनेंगे, लेकिन इस समय ऋत्विक के बल्ले से रन्स बनते हुए। Oh, it was always going to be a tough catch, but that's gone for 4. Oh, that's a great shot. That is a quality shot. नॉर्मल क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, और ये एक शॉट देख लीजिए ऋत्विक के बल्ले से। Oh, good shot. Good shot. That's 6. Oh, good shot. Good shot. ओह, सिंगल्स की बात आपने की और ऋत्विक की सोचा कि सिंगल्स पे मैं भरोसा करता नहीं। ओह, कुछ आवाज आई है, कुछ आवाज आई है। ओ, आउट हो गए हैं ऋत्विक। 29 is 85 for 5. Once again reaching the final. There is an opportunity. Hardik is getting under it and he's not gonna drop those. Another one goes down. मध्यम पमानी के रूप में 3 रन उन्होंने बनाए 91 पर 6 बंगाल। ओह, शाबाश, शाबाश। Oh, that's a cracking shot. That is an absolute ripper. Oh, this could be out. This could be out. He's gone. Saksham Chaudhary 7 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए। हवा में और इसी के साथ शमी का विकेट, 8वें विकेट का पतन। बिना खाता खोले पवेलियन लौटते हुए 113 पर 8। चलिए 4 मिल जाएंगे कि थोड़ा आगे खड़े हो गए थे वो। मिस इट। Oh, he's dropped that catch. अब की बार संपर्क लाजवाब था, तो मिलेंगे भी 6। There it goes again. Back-to-back sixes.
He's on fire. 50 for Shahbaz, and could not have come at a better time as far as Bengal are concerned. इस ओवर के शुरू होने से पहले आपने पिछले 3 ओवर में सिर्फ 9 रन बनाए और उसमें ये स्ट्राइक पे बहुत ही कम सामने आए। सिर्फ 4 बॉल, पिछले ओवर में एक भी गेंद नहीं। There it goes again. This time a fielder. Hardik Pandya takes that catch, and it's Baroda probably who are progressing to the semi-final. And Shahbaz, 55 of 36 deliveries. Up in the air. There it is. Baroda have won this game, and they have progressed to the semi-final with this win. Winning this game by a margin of 41 runs, and that's a big win in a T20 format. And this man on your screen, yes, Hardik Pandya is a champion player indeed. Couldn't contribute much with the bat, but as far as bowling is concerned, picked up 3 wickets for 27 runs in his 4 overs. A champion is what a champion does, and outstanding performance by the bowlers. बढ़िया सीन्स एक और जीत इनके नाम। बड़ौदा की टीम और अब पहुंच गई है सेमीफाइनल में। Yeah, that's been the story of this game. Baroda put into bat 172. They scored in the 20 overs, and in reply, Bengal were bundled out for 131 in 18 overs. Baroda winning this game by a margin of 41 runs. अधूरी मगर अमर प्रेम कहानी। शहर की भीड़ भाड़ और चहल पहल के बीच एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ की गलियों में सादगी और मासूमियत की खुशबू थी। वही रहता था आर्यन, एक साधारण लड़का। आर्यन का सपना था एक बड़ा लेखक बनने का। वो अपने शब्दों के जरिए दुनिया को बदलने की चाह रखता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कस्बे में एक दिन रिया का आना हुआ। रिया शहर की लड़की थी, खुले विचारों की और सपनों से भरी हुई। वह अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने अपनी दादी के घर आई थी। पहली बार जब आर्यन ने उसे देखा तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। उसकी मासूम हंसी, उसकी बातें और आंखों में छुपा गहराई का समंदर। आर्यन को पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। आर्यन की आदत थी कि वह हर साल नदी किनारे बैठकर लिखता था। एक दिन रिया वह टहलने आई। आर्यन की डायरी पर उसकी नज़र पड़ी। वह करीब आई और पूछने लगी, क्या लिख रहे हो? आर्यन थोड़ा घबराए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी कविताओं के बारे में बताया। रिया को उसकी लिखावट और सोचने का तरीका बेहद पसंद आया। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों में जादू है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कहानियाँ दूसरों तक पहुँचाने में मदद कर सकती हूँ। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। रोज़ शाम में वे नदी किनारे मिलते, बातें करते और सपनों को बांटते। आर्यन ने कभी रिया से अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वह जानता था कि उसका जीवन अलग अलग था। लेकिन रिया के साथ बिताए गए हर पल उसके लिए अमूल्य थे। रिया भी आर्यन की सादगी और उसके शब्दों की गहराई से प्रभावित थी। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ खींचने लगी। लेकिन एक दिन रिया ने उसे बताया कि उसकी सगाई तय हो चुकी है। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। वह कुछ नहीं कह पाया। वह बस चुपचाप मुस्कुरा कर उसकी खुशी की दुआ की। उस रात आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती है। शायद हमारी कहानी भी उन्हीं में से एक है। रिया के जाने का दिन करीब आ गया। उसने आर्यन से आखिर बार मिलने की इच्छा जताई। दोनों नदी किनारे बैठे, लेकिन इस बार उनके बीच सन्नाटा था। रिया ने आर्यन से कहा, तुमने कभी मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं की? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर तुम खुश हो मैं हमेशा खुश रहूँगा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चली गई और आर्यन वहीं बैठा रहा। उस नदी के किनारे जहाँ उसकी कहानी शुरू हुई, रिया की शादी हो चुकी थी और वह अपनी दुनिया में खुश थी। लेकिन आर्यन अभी भी उसी कस्बे में था, अपनी कहानियों में खोया हुआ। एक दिन रिया को एक प्रसिद्ध किताब हाथ लगी। किताब का नाम था अधूरी प्रेम कहानी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और हर शब्द में खुद को पाया। उस किताब के आखिरी में आर्यन ने लिखा था,
यह कहानी अधूरी है, लेकिन इसके हर शब्द में वो लड़की है जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया। मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। रिया ने इस किताब को सीने से लगाकर आंसू बहाए। वो समझ गई कि आर्यन का प्यार सच्चा था और निस्वार्थ था, लेकिन वह भी जानती थी कि अब उसके रास्ते अलग हो चुके हैं। आर्यन ने रिया को कभी वापस नहीं देखा, लेकिन उसकी कहानियों के जरिए वो हमेशा उसके साथ रहा। उसकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उसमें जो भावनाएं थी वे कभी नहीं मिट सकती थी। कभी कभी अधूरी कहानी ही सबसे खूबसूरत होती है, लेकिन वे हमें प्यार की सच्ची गहराई का एहसास कराती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।